परम पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी आमादेर मध्य उपस्थित मंचे उपविष्ट तार आशीर्वाद आपनादेर मध्य आमादेर सकलेर मध्य आज बहु बछर धरे बर्षित होच्छे। कविगुरुर भाषाय ए कटी कथा बोले आजकेर अनुष्ठान शुरू करी। अंतर मम विकसित करो अंतरतर हे, युक्त करो हे सबार संगे, मुक्त करो हे बंध, संचार करो सफल कर्मे, शांत तुम्हार छंद, चरण पद्मे मम चित निस्पंदित करो हे, नंदित करो नंदित करो नंदित करो हे। I would request Bikram to take over this evening's proceedings from here as a tribute on the 25th anniversary of this huge garland of people across the world called the Art of Living movement, a tribute to His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji. Friends, this is indeed a momentous occasion. We are, as Kolkata Vasis, we are honored to have the presence of the great His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji here amidst us. We Kolkatans have tried to put together a homage to him. We have got together 210 musicians of Kolkata today to present this concert. And thank you all for coming. Ladies and gentlemen, to begin this concert, I would like to invite on stage the great, the one and only Pandit Ajay Chakravarti. वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथ बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माह्यं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मानि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा संतु ते मयि संतु। ओम शांति शांति शांति। मधुवातरितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्ण सन्तोषधी मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गा
यं सामुदाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाः तस्मै नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति 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 Next, I would like to call upon the stage a master of all genres of singing, be it classical, Rag Pradhan, Nazrul Giti, bhajans or the modern song. She is, to say the least, the pride of Bengal. I present to you Srimati Haimanti Shukla. हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि गुण गावत नाचूंगी।
प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदा प्रेम रस चाखूंगी हरि गुण गावत नाचूंगी अपने मंदिर में बैठ बैठ कर गीता भागवत बाजूंगी हरि गुण गावत नाचूंगी 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 हरि गुण गावत हरि गुण गावत हरि गुण गावत नाचूंगी The great tradition of Baul singing is intrinsic to the culture of Bengal. The great philosophy expressed through this rich tradition will be presented through two of our leading Baul singers of today. The first is the brilliant Sri Lakhon Das Baul. জয় গুরু নমস্কার। আমি তাইতে পাগল হলেম না 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 একটা মনের মতো পাগল পেলাম না দেখি নকল দেখি নকল পাগল সকল দেশে ওরে খেপায় আসল পাগল কয়জনা 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 মনের মতো পাগল পেলাম না আমি তাইতে পাগল হলেম না মনের মতো পাগল পেলাম না আমি তাইতে পাগল হলেম না মনের মতো পাগল পেলাম না বিষয় লালসে আর ধনে জনে যশের পাগল আছে সব দেশে কেউ বা পাগল প্রীতির আসে কেউ বা বিষয় লালসে ধনে জনে যশের পাগল আছে সব দেশে কত রঙের পাগল ঢঙের পাগল কত রঙের পাগল ঢঙের পাগল কে করে এদের ঠিকানা এরা মোহে মত্ত কামে চিত্ত আহা সত্য মিথ্যা বোঝে না মনের মতো পাগল পেলাম না তাইতে পাগল হলেম না মনের মতো পাগল পেলাম না শিবের মতো পাগল পাওয়া ভাই
করি শিব কোঠা বাড়ি যোগ করি শ্মশানে বৈঠকখানা ও সে কিসের তরে ভিক্ষা করে ঘরে যার অন্নপূর্ণা মনের মতো পাগল পেলাম না আমি তাইতে পাগল হলেম না মনের মতো পাগল পেলাম না ছিল পাগলের সেরা হরি বলতে জ্ঞান হারা আর কেমন সে শিশু বয়সে পেল এই ধারা অনলে গরলে জলে অনলে গরলে জলে শৈল কত যন্ত্রণা ও সে যে এমনি পাগল শৈল সকল তবু হরি বলতে ছাড়ল না মনের মতো পাগল পেলাম না আমি তাইতে পাগল হলেম না মনের মতো পাগল পেলাম না দেব পাগলের পরিচয় এই দেশটা ভাই পাগলেই ময় আর ঠাকুর রাম কৃষ্ণের মতো পাগল আর কি দেশে হয় সে যে দেশের পাগল সে যে দেশের পাগল দেশে রইল দেশের পাগল সে যে দেশের পাগল দেশে রইল তারে কেউ চিনেও চিনতে পারলাম না তারে কেউ চিনেও চিনতে পারলাম না মনের মতো পাগল পেলাম না আমি তাইতে পাগল হলেম না ভোলা মন খেপা মন তাইতে পাগল হলেম না মনের মতো পাগল পেলাম 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 না We now present Tandav. It is set to the raga Kirvani and it is played by the 210-piece orchestra. Thank you. Tandav. Dum
Wow, it was such a wonderful music, no? शब्द से निशब्द के ओर जाना ही ध्यान है। शब्दों में लयबद्धता संगीत और संगीत से अपने गीत स्वगीत तक जाना अध्यात्म। जब जीवन में संगीत नहीं होता तो विकार बढ़ जाते हैं। संगीत होने से विकारों कम होने लगते हैं और ध्यान से तो विकार सारे मिट जाते हैं। निर्विकारता और विश्राम ये दो मानव जीवन का लक्ष्य। और ये साध्य तभी है जब हम साधना और सेवा दोनों साथ लेके चलते हैं। तो सेवा के काम में सबको भाग लेना पड़ेगा और थोड़ा समय अपने लिए रखे, उसमें साधना करनी पड़े। सो शरीर निरोग होगा, समाज स्वस्थ होगी, मन प्रसन्न होगा, चित्त तीक्ष्ण हो, बुद्धि तीक्ष्ण होगा। तो वायलेंस फ्री सोसाइटी, डिजीज फ्री बॉडी, क्विवर फ्री ब्रेथ, confusion free mind, inhibition free intellect, trauma free memory, and sorrow free soul is birthright of every single individual. हिंसा विहीन समाज, रोग मुक्त शरीर, कंपन रहित सांस, ब्रह्म से रहित मन, तीक्ष्ण बुद्धि, पूर्वाग्रह रहित बुद्धि और दुख से विमुक्त आत्मा हम सबकी अभीष्ट है, सब चाहते हैं। उसका दो ही रास्ता है, साधना और सेवा। ये हर एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार, ठीक है ना? तो दोनों साथ में लेके चलें, संगीत और विज्ञान। हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं, दाहिने और बाएं। एक भाग से संगीत, दूसरे भाग से विज्ञान, तर्क। सिर्फ तर्क में आदमी जीता रहता है तो बड़ा जीवन शुष्क हो जाता है, और सिर्फ संगीत में ही डूबे रहता है तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती, काम नहीं करती। तो संतुलन ही जीवन का रहस्य है, वही योग है। संतुलन, संगीत और विज्ञान, निशब्द और शब्द, ठीक है ना? आप कुछ प्रश्न हैं? आप बैठ जाओ, आप ऊपर बैठ जाइए। आप सब लोग खड़े खड़े हैं, तपस्या हो रही है ना? Are you tired? All of you standing? Not at all. Not at all? Oh, good. When we make mistakes unintentionally, what should we do? यदि हमारी इच्छा के विरोध में भी यदि हमसे भूल होती हो तो हम क्या करें? दो बातें, तो प्रायश्चित कर लेना। प्रायश्चित माने भूल हो गया, क्या करें? अबे हो गया है, और भूल का परिणाम है कुछ दुख, कुछ सजा, उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा भूल आगे ना हो, इसके लिए हम मन में संकल्प करो।
अब बैठ के उसी भूल को ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इस तरह से विषाद करने से कोई प्रयोजन नहीं जीवन, इसे कोई फायदा ही नहीं। विषाद नहीं करना चाहिए। हो गया हो गया। जब भूल का ज्ञान होता है उस वक्त हम निर्दोष होते हैं। निर्दोष मन में ही भूल का ज्ञान होता है, समझ आती है। समझ आते ही जान लेना बीती हुई समय चला गया, कट गया, अब आगे 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 चलते रहें। आत्मग्लानि से खुंदक नहीं खाना, आत्मग्लानि से बचाएं अपने आप। नहीं तो क्या होता है, आत्मग्लानि हो जाता है, आप अपने ऊपर गुस्सा करने लगते हो, फिर तनाव से भर जाते हो, किसी दूसरों पर फिर वो दोष आरोप करोगे, दूसरों पर गुस्सा करोगे। दोनों से बचने का यही एक उपाय है। भूल हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जिज्ञासा और जिद में क्या अंतर है? दोनों में ही प्रश्न पर प्रश्न होते रहते हैं। What is the difference between curiosity and stubbornness, since both have lot of questions on and on? In fact, stubbornness has no question. Stubbornness, you know something, you're holding on to it. Curiosity, if it's real curiosity, there is a sense of wanting to know. Superficial curiosity is you simply go on asking question, you are not taking answer within. नहीं, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, उत्तर लेते नहीं है, जवाब स्वीकार नहीं करते। प्रश्न पूछना है, बस प्रश्न पूछ के अपना कुछ काम करते रहते। अक्सर दुखी व्यक्ति यही करता, बहुत जो दुखी रहता है व्यक्ति प्रश्न पूछता है मगर उत्तर से उनका कोई मतलब नहीं। कोई इनका प्रश्न सुन ले, बस उसी में उसकी तसल्ली हो जाती है ना। हर प्रश्न को आश्चर्य में बदलना है, ये विवेक है। आश्चर्य भी प्रश्न है, मगर उसके लिए कोई जवाब ढूंढ नहीं रहे हो आप, नहीं। इसको आप अकेले बैठ के इस पर चिंतन करो। इसको I call this as a brain teaser. It makes your mind very sharp, intellect very sharp. It's good. Guruji, there are a lot of youth today here, a lot of students from our Yes and Yes Plus team. They have some questions. Yes, I'm ready for youth's questions. गुरुजी, सच बोलने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? झूठ बोलने के लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए वैसे देखा जाए। झूठ बोलोगे फिर पकड़े जाओगे, फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। सच बोलने से हिम्मत की क्या जरूरत है? मगर ऐसा लगता है सच बोलने से हमें नुकसान होगा। क्या नुकसान हो सकता है जरा देखो। किसी का विश्वास या प्रेम खो सकते हो, इसीलिए झूठ बोलते हैं ना। धन खोने का, विश्वास खोने का, किसी का प्रेम खोने का। अंदर से जागो, जहां से सभी तरह का बल मिलता है वहीं से सच बोलने का भी बल मिलता है। युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति, चार चीज चाहिए। मन मुक्त होना चाहिए। जब कोई चीज लेके मन में बैठे रहते हैं, वो उसका दबाव से मन भी पीड़ित और शरीर में भी रोग होने लगता है। इसलिए सभी बातें सबके सामने नहीं कह सकते। जो ज्ञानी हैं या जिनमें जरा सा भी एक विवेक है, जो आपको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, उनके सामने जाके बोल। इसी को कहते हैं कन्फेशन। कोई
गुरु के पास, आचार्य के पास या माता पिता के पास जाके, या जो बड़े हैं जो तुमको समझते हैं, तुम्हारे अंतराल को समझने वाले होते हैं, उनके पास जाके अपनी दिल की जो भी एक दबाव है दिल पर, वो सारे बातों को उनके सामने रखो, बोलो। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा एक अद्भुत परिकल्पना है, भारत देश ने पूरे दुनिया को दिया है, जहाँ पर जो शिक्षक है और विद्यार्थी है, इनके आपस में एक आत्मीयता बने रहती थी। आत्मीयता से वो अपने जीवन को निखारते थे, सारी समस्याओं से कैसे बाहर आना, ये युक्ति, ये ज्ञान जान लेते थे। हमें आज फिर ये ज़रूरत है। विदेश में साइकोलॉजिकल काउंसलर करके लगा, अब उनका काफ़ी प्रचार हो रहा है। हर स्कूल में एक काउंसलर होते हैं, काउंसल करते हैं बच्चों को। यहाँ हर शिक्षक काउंसलर होना चाहिए, सलाहकार होना चाहिए। तब विद्यार्थी जीवन में हिम्मत ही हिम्मत आएगा, फिर डर निकल जाना चाहिए। My dearest Guruji, sometimes we know what is right and wrong for us, but still we choose not to do the right thing. Why? You know, because you think doing wrong, you're going to get some pleasure, some joy, some fun. But I tell you, it's not going to last long. You know? It's better to have long-term joy at the cost of short-term problem rather than having short-term joy at the cost of having a long-term problem. You see that? Dearest Guruji, I have been living a life of turmoil since many years now. My life is highly uncertain. I want a way to overcome it. Please help me. Uncertainty and turmoil. Every turmoil makes you strong. Remember these words. The turmoil is there to make you solid. Don't worry about it. What turmoil you are experiencing? More than what Mahatma Gandhi experienced? More than Subhash Chandra Bose experienced? Just 50, 60 years ago, see what a turmoil our elders have experienced. Your own grandfathers and grandparents had experienced. Haven't they? There was no hope for them. कोई रोशनी नहीं दिख रही थी, और जिस राज्य का प्रभाव पूरी दुनिया में रहा, उस राज्य के साथ लड़ना, उससे मुक्त होना सपने में भी नहीं देख सकते थे लोग। इतना मुश्किल था। फिर हुआ कैसे? अध्यात्म शक्ति से। लेकिन महात्मा गांधी एक अध्यात्म पुरुष थे। वो रोज सत्संग किया करते सुबह शाम, और लोगों को हिम्मत से भरते थे। तो उससे निखर आए लोग, सत्संग के उससे निकल आए। फिर इन्होंने नमक का सत्याग्रह किया, नमक को मुक्त किया, देश को मुक्त किया। कई तरह की एक क्रांति उठी। मैं कहता हूँ सिर्फ अध्यात्म से ही क्रांति की संभव है, संभावना है। जिस क्रांति में अहिंसा का प्रथम स्थान होगा, अहिंसा पूर्वक क्रांति होना हो। नहीं तो लोग लड़ रहे हैं जगह जगह, दुनिया में हर जगह लोग लड़े जा रहे हैं, और इसी मकसद को लेके इससे हम दुनिया को अच्छा बनाएंगे। जो भी लड़ता है उनसे पूछो, जो आत्महत्या करता है उनसे पूछो, वो कहता है दुनिया बहुत बेकार हो गया, खराब हो गया, इसको सुधारने हम चलें। चाहे जिहादियों से बात करो, चाहे नक्सलियों से बात करो, किसी से भी बात करो, इन सब के दिल में एक ही बात रहती है कि दुनिया को सुधारना है। और कैसे? बंदूक से। मैं कहता हूँ बंदूक से नहीं सुधरेगी दुनिया, भाव से सुधरेगा, सेवा से सुधरेगा। और
सब मिलके काम करने से सुधरेगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अखबारों में भी नमक के बारे में, आयोडाइड सॉल्ट सबको खाना चाहिए। मैं मानता हूँ ये बात सच है, आयोडीन ज़रूरत है सबको, मगर किन को? हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हिंदुस्तान में सिर्फ 2% लोगों के लिए आयोडाइड की कमी है, डिफिशिएंसी है, वो भी हिमाचल के जो तटवर्ती प्रदेश है वहाँ पर, हिमाचल में और या पहाड़ी क्षेत्रों में सिर्फ वहाँ 2% लोगों के लिए आयोडीन की कमी है। मगर आज सबके ऊपर थोपा जा रहा है, सबको आयोडाइड साल्ट ही खाना चाहिए। साधारण नमक बेचना भी कानून के खिलाफ कर दिया। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। चाहे अमेरिका हो चाहे जर्मनी हो, इन सब देशों में नमक की चॉइस है, वो जो चुन सकते हैं। उनको चाहिए तो आयोडाइड खरीद सकते हैं, चाहिए तो सादा नमक खरीद सकते हैं। और हमारे देश में सादा नमक हम क्यों नहीं खरीद सकेंगे? अच्छा, इससे कई विज्ञानियों ने ये बताया कि हाइपरथायरॉयडिज्म होने की संभावना है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनको आयोडाइड साल्ट बहुत खाने के बाद चमड़े पर ब्लिस्टर्स निकलने लगे। जैसे नमक बंद किया तो ब्लिस्टर ठीक हो गए। इसी तरह डिप्रेशन की शिकार हम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आयोडीन हो जाए शरीर में। हम सब लोगों को इस पर सोचना पड़े। दुनिया में अलग प्रदेशों में लोग जो नमक इस्तेमाल करते हैं, भारत में हम 3 गुना ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा, माने 3 गुना अधिक आयोडीन हमारे शरीर में जाने की संभावना है। एक तो ये बात है। इसके बारे में तो बहुत बातें हैं, रिसर्च काफ़ी हुई है। मैंने भी 3 महीने से पूरा इसको अपना देखा, अध्ययन किया। फिर हमको लगा कि सबको इस पर चेतावनी देनी चाहिए। आयोडीन नमक चाहिए, मगर कानून में हमें चुनने के लिए भी अधिकार होना चाहिए। क्या बोलते हो आप? सब एग्री करते हैं? कितने लोग इस पे सहमत हैं? हाथ उठा के दिखाना मुझे। हमें अपना अधिकार चाहिए, वो जिस तरह का नमक हमको खरीदना हो वो हम खरीद सकते हैं। ताकि 10 साल के बाद फिर हमको पता चला रहे 10 साल हमने ऐसा नमक खाया इसीलिए हमारे ब्रेन में, शरीर में डिप्रेशन हो गया, ये रोग आ गया। हम इस तरह का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है हमको। हमारे देश में हम सब काफ़ी बुद्धिमान हैं, बुद्धिमत्ता बहुत है लोगों में। सादा नमक सदियों से खाते आ रहे हैं। 2 रुपया की नमक 10 रुपया में हमको खरीदने की कोई दरकार नहीं है। इस पर हम सबको विचार करना ज़रूरी है, एक दूसरे को कहना भी ज़रूरी है। ठीक है ना? गुरुजी, मेरा नाम सलमान बेग है। मैंने आपकी सुदर्शन क्रिया की और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और तब से मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ। लेकिन मुझे जनरली एक क्यूरियोसिटी होती है कि आप हिंदुओं के इतने देवी देवता क्यों होते हैं? हिंदुओं में इतनी देवी देवताएं क्यों होते हैं, ये प्रश्न। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने एक चॉइस दिया, कहा कि एक ही परमात्मा है, उसको जिस रूप में चाहे, जिस नाम से चाहे तुम मानो, ताकि अपना एक पर्सनल कनेक्शन भगवान के साथ तुम बना सकोगे। एक ही आटा है, उसमें कितने तरह का भोजन बनाते हो कि नहीं? एक आटा है गेहूं का, उससे कचौरी भी बनती है, समोसा भी बनती है, पराठा, पूड़ी, नान, इस तरह से तरह तरह, डबल रोटी, मगर है एक ही आटा, गेहूं का आटा।
इसी तरह से एक ही चावल, यहाँ देखो बंगाल में कितने तरह की चावल की डिशेस बनते हैं। हमारी जो चेतना है, जो स्पिरिट है, इट लव्स डाइवर्सिटी, इसको वैविध्यता में बहुत पसंद है। जो भगवान ने इतने तरह तरह के लोगों को बनाया, तरह तरह की सब्जियां बनाई, उगाई, तरह तरह के फूल और पशु पक्षी, मनुष्यों में भी देखो कितने तरह के लोग हैं, किसी का आंख छोटा है, मोटा है, कोई किसी का नाक लंबा है, तरह तरह के रूप बनाया। ऐसे जो भगवान जो वैविध्यता को पसंद करता है, उसको हम एक यूनिफॉर्म में क्यों खड़ा करें भाई? हो सकता है उसको अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम में आना पसंद होगा। यह सोच के शायद हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने कहा, एक एक गुण और एक एक नाम के साथ एक एक रूप को भी उन्होंने सृजन कर दिया। उसमें सबसे काली माँ का एक, यहाँ कलकत्ते तो है, काली माँ का बहुत विशेष, कई लोग समझ नहीं पाते काली माँ का स्वरूप क्या है, ये क्यों इतना भयानक है, इसको क्यों पूजते हैं। काली माँ से कोई भयानक भीकर स्वरूप और कुछ नहीं हो सकता। सिर और कटा हुआ है, उसमें से खून बह रहा है, ये तलवार है, जीभ लटका हुआ है, कोई सुंदर तो नहीं लगता, इतना भयानक रूप। यदि तुम इतना भयानक रूप को भी प्रेम कर लोगे तो जीवन से कोई भय रहेगा ही नहीं, भय जीवन से भाग जाएगा। भय के भीतर भी अभय को देखना, काले के भीतर भी ज्योति को देखना, प्रकाश को देखना, बाहरी रूप से हटकर अंतस्तंभ की जो सुंदरता है उस पर नजर डालना, यही रहा होगा हमारे पूर्वजों का एक सुंदर कल्पना, परिकल्पना। पूर्वजों का ये नहीं था कि बहुत भगवान है, कहीं भी नहीं कहा कि बहुत भगवान है, एक ही भगवान है दुनिया में, मगर अलग अलग रूप में क्या करते हैं। दुर्गा का पूजा आ गया, आज काली की पूजा करते वक्त क्या बोलते हैं, हे भगवान तुम मेरे दिल में हमेशा रहते हो, थोड़ी देर आ जाओ, इस मूर्ति में तुम्हें प्रतिष्ठा करता हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। कैसे खेलूंगा? जो तुमने मुझे किया मैं तुमको करूँगा। तुम सूरज और चांद को लेके मेरे चारों ओर घूमता है, मैं एक ज्योति दिया जला के तुम्हारे चारों ओर घुमाऊंगा। जो तुमने किया वैसे मैं तुमसे खेल खेलूंगा। खेलने के बाद ये कहते हैं भगवान फिर वापस तुम मेरे दिल में आ जाओ करके वो माँ की शक्ति को अपने दिल में ले लेते हैं, फिर वो मूर्ति को पानी में विसर्जन कर देते। मूर्ति में नहीं है भगवान, भगवान हमारे दिल में है। फिर वो दिल से थोड़ी देर के लिए मूर्ति में हम लेके आते हैं, क्यों? हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जीवन में कितना दिया परमेश्वर ने, उस आभार उसको आभार व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं होता। इसीलिए कृत्य में हम उतर आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उस ईश्वर को स्मरण करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी यही कहते हैं कि भगवान के पूरे रूप को देखो, फिर एक एक अंग को देखो, बस सिर्फ एक ही अंग को, फिर अंग को भी छोड़ दो, मंत्र को भी छोड़ दो, सब छोड़ के शांत हो जाओ अपने आप में। तो कबीर दास ने भी कहा ना, जब मैंने हरि हरि कहते कहते हरि तो मिले नहीं, छोड़ दिया तो अब हरि लागे पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। इस तरह से भगवान तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, माने सारी प्रकृति हमारे साथ हो जाएगी जब हम एक कला को जानते हैं। जिस ढंग से पूजा से फिर अपने समाधि में बैठना, ध्यान में बैठने का ये ढंग जान लेते हैं, ये सब एक अनूठी कला है। हाँ? बस इतना ही ध्यान रखो, प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम परमेश्वर और उसका अलग अलग नाम, अलग अलग रूप। ठीक है ना? I have not done your course, but I am in the Shivir today, and I have realized that you are Lord Vishnu himself.
So when will your Ram Rajya take over this planet? But you have already taken over me. Listen. Vishnu, you know what is the meaning of Vishnu? One who is in every atom. So कण कण में जो व्याप्त है चेतना वही विष्णु की चेतना। सिर्फ मैं नहीं हूँ विष्णु, तुम भी हो। सब कुछ हरिमय है जगत, विष्णुमय है जगत। तो सब जगह वही चेतना है, वही रोशनी है, वही प्रेम है। अच्छा, जब आप एक्टिव हो जाओगे हमारे साथ, तब राम राज्य तो है ही समझता। ये नहीं बोलना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति सेवा, साधना, सत्संग में लगो, देखना समाज सुधरता चला जाएगा। एक आखिरी प्रश्न, कितने हैं और प्रश्न? बहुत हैं, 3-4 हैं। एक प्रश्न लेते हैं, ठीक। Who is a guru? How to find one's guru? And can one lose his guru and never get him back in his or her lifetime? अच्छा, हिंदी में पूछें तो बहुत लोग देख रहे हैं, सबको हिंदी में चाहिए होगा ना। अच्छा, गुरु कौन है? देखो ये चिंता छोड़ देना, गुरु कौन है? गुरु को तुम कैसे नाप पाओगे? शिष्य होना है तो मुझ में क्या लक्षण होना चाहिए ये देखना चाहिए, है ना। मैं सचमुच में सीखना चाहता हूँ क्या? सचमुच में जीवन में बदलना चाहता हूँ क्या? मुझे क्या चाहिए? सचमुच में मुझे जीवन का लक्ष्य पर तक पहुँचना चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को परीक्षा करें, ठीक है। और ज्ञान जहाँ से मिले वो लेते चलें। वैसे उपनिषद में कहते हैं गुरु के 5 लक्षण होते हैं, जिनके पास जाने से दुख का क्षय हो, सुख की आविर्भाव हो, प्रसन्नता उमड़े, ज्ञान की रक्षा हो, सब तरह की भीतर की जो टैलेंट्स है, कुशलता है, वो बाहर निकल के आए और समृद्धि का महसूस करे, कमी ना महसूस हो, एक तरह का तृप्ति महसूस हो। ये 5 लक्षण होते हैं, घटते हैं। हाँ? अच्छा, ये 5 लक्षण सहज ही घटता है जब हम अपने आप में तृप्त होते हैं। तो कोई गुरु बनने की चेष्टा करोगे तो घंटाल हो जाओगे, बिल्कुल नहीं बन होएगा काम। गुरु बनने क्यों है तुम्हें गुरु? बड़ा सिर दर्द हो गया सर, पता है। तो गुरु बनने की चेष्टा नहीं करने जाए किसी को, ठीक है। अच्छा, फिर अपने से जो हो सकता है दूसरों को मदद करते, जो आप जानते हो दूसरों को बताते जाओ। तो एक गुरु के लिए कोई शिष्य नहीं होता, शिष्य के लिए जरूर गुरु होते हैं। ये बड़ा बारीक है, सूक्ष्म है, ये स्थिति है एक चेतना की। तो गुरु की दावा करने वाले कभी नहीं गुरु बन सकते। वैसे देखा जाए तो हर एक में गुरु तत्व है, विवेक ही गुरु तत्व है, और विवेक से सब लोगों के जीवन में परिवर्तन आ ही रहा है। और जिसके जीवन में विवेक में और जीवन में कोई भेद नहीं है, जो वॉक द टॉक करते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे चलते हैं, लोग उनको गुरु कहने लगते सहज ही। ठीक है ना। हम किसी को जज करने से पहले हम अपने आप को देखना चाहिए, देखना जरूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं, दूसरों को जज करते हैं। हाँ? कोई एक पत्रकार किसी से 5 मिनट मिल लेता है, फिर उनके बारे में जजमेंट लिखता है, वही सब लोग पढ़ के वही सच मानने लगे। ये ठीक नहीं है। या कोई किसी के बारे में कुछ कहता है, जब कोई किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात कहता है तो हम बहुत ज़बरदस्त उसको पकड़ लेते हैं। अच्छी बात कोई कहे उसको सीरियसली लेते ही नहीं।
पहले हम अपने मन को अध्ययन करें, तो कल फिर हम सुबह फिर प्राणायाम ध्यान सब करेंगे कल, और बाकी और प्रश्न बहुत है कल ले लेंगे, ठीक है? हाँ, अब एक दो और सॉन्ग है ना, क्या है अभी? यू आर गोइंग टू प्ले वन मोर गुरुजी, सीता। हाँ? जिन लोगों ने आज कोर्स मिस हो गया वो कल आ सकते हैं क्या? कल आ सकते हैं, जो आज नहीं आ पाए कल ज़रूर आ सकते हैं, सुबह और शाम। फिर कल भी हम लोग सत्संग करेंगे, गाएंगे, ध्यान करेंगे, सब करते हैं, ठीक है? आज काफ़ी देर से बैठे हो, मुझे पता है। हाँ। एक दो और सॉन्ग हो जाए फिर चलते हैं। था तक धिन तक धिन 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 था तक धिन तक धिन।
जय जय